مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیرالدین قادری صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن نے بی ایس پی ایم پی دانش علی کے ساتھ پارلیمنٹ میں پیش آنے والے واقعے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور بی جے پی ایم پی کو معطل کرنے کی مانگ کی ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کی نو تعمیر شدہ عمارت میں ایک مسلمان ایم پی کے خلاف بی جے پی ایم پی کی جانب سے استعمال کیے گئے نازیبا الفاظ پر مختلف گوشوں کی جانب سے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے اور لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے کارروائی کی مانگ کی جا رہی ہے۔ صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیرالدین قادری نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے اور اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس کی تائید کرنے والے مسلم رہنماؤں اور علماء اکرام کو اپنا موقف واضح کرنے کا مشورہ دیا۔ صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن نے بی جے پی اور آر ایس ایس کے حمایتیوں پر زور دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں مسلمان رکن پارلیمنٹ کی توہین کے خلاف احتجاج کریں اور اپنی پارٹی پر فرقہ پرست بی جے پی ایم پی کو تاحیات پارلیمنٹ سے نااہل قرار دینے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، 2 دن پہلے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہمارے ملک بھارت کی پارلیمنٹ میں جو جدید تعمیر کی گئی ہے، اس پارلیمنٹ میں ساورکر اور گوڈسے کا خون اپنا زہر اگل رہا تھا، اور وہی آئیڈیالوجی کو سنسد پر لاگو کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی۔ اس سے بڑی ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ سنسد میں بیٹھے بی جے پی کے ارکان، ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، ان کی خوشی کسی سے پوشیدہ نہیں رہی۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ساورکر اور گوڈسے کا خون پکار رہا تھا، تو اس کے در پردہ آر ایس ایس کا ذہن اور بی جے پی کی آئیڈیالوجی اس میں مکمل شامل تھی۔ اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور بی جے پی آر ایس ایس جو ملک میں اور ہمارے بھارت میں جو نزاعی کیفیت پیدا کر رہی ہے، اور اس کی اصل نیت کیا ہے، اس کے تعلق سے مزید کچھ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بھارتی جانتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ میں یہاں یہ تو مخالفین ہیں، ان سے اس کے سوا اور کیا توقع رکھی جا سکتی ہے، لیکن آج میں ان سے مخاطب ہوں جو ان مخالفین کے اعلی کار بن کر اپنی قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج میں ان سے مخاطب ہوں، اور بالخصوص جو ہمارے بھارت میں ایک متبرک نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی ہے، جس کو صوفی سجادگان کا نام دیا گیا ہے، جس کے کرتا دھرتا اجمیر شریف کے دیوان جناب زین العابدین صاحب اور ان کے لڑکے نصیر الدین جو اس کے سربراہ ہیں، اور یہ ہمیشہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کی یہ در پردہ تائید کرتے آئے ہیں۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور 2024 میں ان کا مشن یہی ہے کہ جتنے بھی بھارت میں درگاہیں اور خانقاہیں ہیں، ان کو بی جے پی کے قریب لایا جائے۔ تو اسی مقصد کے تحت یہ لوگ بی جے پی کے لیے اور آر ایس ایس کے ایجنڈے کو روبہ عمل لانے کے لیے رات دن لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر میرے کہے ہوئے یہ الفاظ اگر غلط ہے، یہاں پر میں ایک سوالیہ نشان دیتا ہوں کہ اگر میرے یہ کہے ہوئے الفاظ غلط ہے
तो फिर मैं सवाल कर रहा हूं दीवान जी अजमेर शरीफ से और उनके लड़के से कि तुम्हारे एक भाई का पार्लियामेंट में उनके साथ जो बदतमीजी की गई और मजहब इस्लाम को बुरा भला कहा गया, उनको मुल्ला कहा गया, कटवा कहा गया, दल्लाल कहा गया, आतंकवादी कहा गया, तो उस वक्त अभी तक आपकी आंख क्यों नहीं खुली? आप भारत की एक तंजीम को बैन करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे। आप हुकूमत हिंद के पास कई नुमाइंदगियां की आपने, उस तंजीम को बैन लगा जाए, ये फिरका परस्त है। तो मैं तुम्हारे से ये पूछना चाहता हूं, पार्लियामेंट में क्या हुआ था? क्या ये फिरका परस्ती का नंगा नाच नहीं था? क्या जो है ना, जो तलवाना बताकर मुसलमानों को काटने की बात की जा रही है, तो क्या ये फिरका परस्ती का नंगा नाच नहीं है? मसाजिद पर भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो क्या फिरका परस्ती का नंगा नाच नहीं है ये? क्या अभी भी तुम अपने आप को मुसलमान समझते हो? अभी भी तुम मुसलमानों के जो है ना रहबरी करने का दावा करते हो? आज 3 दिन हो गए यार, जितने इस काउंसिल से मुंसलिक है, क्या इनको सांप सूंघ गया है इनको? और ये भारत की एकजुटता का मुसलमानों में इत्तेहाद की बात करते हैं, लेकिन आज तक किसी की जबान नहीं खुली। और वो शमसी जो किसी मस्जिद का शाही इमाम कहलाता है, जो एक मदरसा चलाता है, जिसने मोहन भागवत को अपने मदरसे में बुलाया और उनको राष्ट्रपिता कहा था, आपको मौलाना कहता है, लानत है तेरे इन पर, लानत है तेरी मुसलमानी पर। फिर आज 3 दिन से तेरी जबान खुली क्यों नहीं? खुली क्यों नहीं? पूछते रहे राष्ट्रपिता से सवाल कर। मैं चैलेंज दे रहा हूं लियासी, मैं तुमको चैलेंज दे रहा हूं, तुम्हारे राष्ट्रपिता से पूछ कि जो जमहूरियत का जिसको मंदिर कहा गया है पार्लियामेंट, और जिस पार्लियामेंट के सीढ़ियों पर मोदी ने अपना माथा टेका था, उस मंदिर में क्या हो रहा है? अरे जिसको तुम मंदिर मानते हो, तुम उसकी कदर नहीं करते। जो मंदिर समझते हो, उसके अजमत के उसके धज्जियां उड़ा रहे हो, तो तुमको भारत से क्या मतलब है? भारतवासियों से क्या मतलब है तुमको? क्या ये सवाल पूछ सकते हो तुम? अरे बीजेपी और आरएसएस के दल्लालों, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं अगर तुम में हमियत गीरत नाम की कोई चीज है, तो अपने जमीर को बेदार करो। आज एक बड़ी बारगाह के नाम का सहारा लेकर आज मुसलमानों के साथ जो सुलूक हो रहा है, वो तुमको नजर नहीं आता। और किसी मुसलमान से कोई गलती हो जाती है तो तुम नाचना शुरू करते हो, और तुम अपने आप को मुसलमानों के रहबर समझते हो। लानत है तुम पर। मुनाफिकत तो इसी को कहा जाता है, और ये मुनाफिकीन आज नहीं है, ये सरकार के जमाने में भी थे। हो सकता है कि ये अब्दुल्ला इब्न उबई की नस्ल हो सकती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे जिसको अपनी कौम का, इस्लाम का पास लिहाज नहीं है, तो वो रहबर कहां से हो सकता है? अगर तुम में हिम्मत और गिरत है, तो आज पूछो जाके तुम्हारे राष्ट्रपिता से। आज पार्लियामेंट के सामने तुम अपने काउंसिल के मेंबरों को लेकर वहां पर धरना मुनज़्ज़म करो, सवाल पूछो कि दस्तूर के जमहूरियत के मंदिर में क्या हो रहा है? दस्तूर के धज्जियां उड़ाई जा रही है। उस दस्तूर के सामने माथा टेकने वाले उस दस्तूर को जो ना नंगा कर रहे हैं, इससे बड़ी जो ना भारत की बदनसीबी क्या हो सकती है? और सारी दुनिया में इसका जो है ना क्या जो है ना नतीजा सामने आएगा, भारत की छवि कैसे नजर आएगी? और मैं उन तमाम हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों से, जिसका दस्तूर पर और जमहूरियत पर और जो पार्लियामेंट के तखद्दुस पर जिसका यकीन है, उनको चाहिए कि ये वक्त जो है ना अपने भारत की गिरती हुई साख को बचाने के लिए, दस्तूर की हिफाजत के लिए और पार्लियामेंट के तखद्दुस को बरकरार रखने के लिए ये लाजिम है कि मुतावाज बुलंद करें और मरकजी सरकार से मुतालबा करें कि वो गौर से
और सावरकर के खून को ताहयात उसको जो ना पार्लियामेंट में आने से जो ना उसको बंद किया जाए, बैन किया जाए उसको। अगर ये मुतालबा नहीं हुआ तो फिर याद रखो मुसलमानों, और मैं बीजेपी में शामिल उन मुसलमानों से, नाम निहार मुसलमानों से मुखातिब हूं, क्या तुम्हारी गीरत शर्म अभी भी नहीं जाएगी कि तुम्हारे साथ, तुम्हारी कौम के साथ जो सलूक हो रहा है, तुम इतने जमीन फरोश हो गए? अरे नाम बदल लो नाम, कौन पूछने वाला है? एक बदल लिया, एक वसीम रजी बदल लिया, इस्लाम का मुसलमानों का क्या बिगड़ा? अगर तुम बदल लोगे तो हमारा क्या बिगड़ने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हारे जिस्म में जो खून बह रहा है वो तो सामने आ जाएगा, वो तो सामने आ जाएगा कि तुम किस खून के हो। अगर अभी भी नाम निहार मुसलमान जो बीजेपी और आरएसएस के आले कार है और जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और अपने ईमान का यहां पर ऐलान करना चाहिए। यही जो ना मेरा मुतालबा है। और तमाम हमारे मुल्क के, भारत के जितने भी पार्लियामेंट्रियन हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनको इस वक्त अपने पार्लियामेंट के तखद्दुस को बचाने के लिए, अपने दस्तूर की हिफाजत के लिए आगे आने की जरूरत है। और जो ना दस्तूर की हिफाजत करना हर शहरी का ये फर्ज है। ये मसले को यूं ही अगर छोड़ दिया जाए तो यही पार्लियामेंट में सावरकर और गोडसे का खून बोलेगा। और यहां पर मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूं, अगर इस बदबख्त के साथ अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो याद रखो, मैं तमाम सियासी पार्टियों को आगाह कर रहा हूं, जिस तरह बीजेपी से कोई एक मुस्लिम उम्मीदवार पार्लियामेंट में नहीं जाता, उसको नहीं लाया जाता, दरे पर्दा बीजेपी आरएसएस आपको ये वार्निंग दे रही है, अगर दूसरी जमातों से तुम मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आओगे तो तुम्हारे साथ ये सलूक होने वाला है। ये जिल्लत बर्दाश्त करना है तो इलेक्शन लेके आओ, वरना मुसलमानों को इलेक्शन में ठहरने की जरूरत नहीं है। ये तुमको वार्निंग दी जा रही है, ये वार्निंग दी जा रही है। अगर अब भी नहीं समझे तो फिर याद रखो कि फिर हमको जो है ना हमारे वजूद का जो है ना यहां पर सवालिया निशान पड़ने वाला है। इसके लिए हमको लड़ाई लड़ना है और तमाम मिलकर मुत्तहदा तौर पर मरकजी हुकूमत को और स्पीकर साहब पर यह दबाव डालना है कि उसको ताहयात इस पर बैन लगा दिया जाए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तियाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।